Hello students, today we are here with a new video about new syllabus of Jawahar Navodaya entrance exam. Let us start. Now see, the questions are asked in this format. The paper is divided into 4 parts. Here I have written section, questions and marks. In each section there will be 20 questions and 25 marks because each question carries 1.25 marks. Now see, first uh, section is mental ability. In mental ability there will be figures, and those figures are asked for 20 questions, and this question carries 25 marks. Now see, second part is environmental studies, and it is also 20 question and 25 marks. Then third part is arithmetic, that we call maths, and maths also will be asked in 20 questions and it carries 25 marks. Now language part, their passage will be asked, and those passages questions are 20 and marks are 25. Now see, total 80 questions will be asked and the marks are 100 marks. So whole paper is of 100 marks, and 80 question will be asked, and each question carries 1.25 marks. Now see what others are uh, part are divided. Now see, first we are talking about the mental ability test, and this part is of 20 questions and 25 marks. Now here see, previously what was the paper pattern? Previously 40 questions were asked and 50 marks, but it is now changed. This year Navodaya has changed the things. तो इस बार आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत सारे फिगर भी कट हो गई है. नाउ सी हियर, फर्स्ट सेक्शन में क्या है? जो फर्स्ट सेक्शन मैंने बोला था जो नवोदय में पहले था उससे अलग क्या है? तो 20 मार्क्स मैथ क्वेश्चन मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड 20 मार्क्स 20 questions met and 20 question EVS is equal to 40 questions, and this is 50 marks. Okay, and last what was last? Only figures were asked, the mental questions were there, and these questions were for 50 मार्क्स. तो इस बार हमने नहीं, नवोदय ने चेंज किया है कि 40 क्वेश्चन डिफरेंट टू डिविजन्स, मैट एंड ईवीएस. मैट मीन्स मेंटल एबिलिटी, दोज वी आर कॉलिंग फिगर्स. ओके, then the latest math syllabus has exactly 5 parts only. Till last exam 10 parts were there. अब से क्या होगा? अब से 4 पार्ट ही है, और each part में से 4 question will be asked. Now what are the 4 parts? We are talking about the 4 parts. Now see, लास्ट एग्जाम तक क्या था कि 10 टाइप ऑफ फिगर्स वर आस्क, एंड उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते थे. नाउ इस बार से क्या होगा? तो पार्ट 1, पैटर्न कंप्लीशन इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न्स, ऑल द पैटर्न्स, these are asked for 4 questions. ओके, देन सेकंड पार्ट इज फिगर सीरीज कंप्लीशन. तो फिगर्स आपको सीरीज कंप्लीट करनी है. फर्स्ट फिगर क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसके भी 4 क्वेश्चन है. Then geometrical figures like triangle, square and circles, those figures will be asked, and those questions are of 4. Then second is mirror image और water image. mirror image में क्या था और water image जो last time भी था, और उसके 4 क्वेश्चन है. Then embedded figure, उसके भी 4 क्वेश्चन है. तो टोटल 20 क्वेश्चन will be asked, and टाइप है only 5 type of figure will be asked. Till last year exam they were 10 time for figure. Now next is एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में कौन से टॉपिक है? तो एनवायरमेंट में टोटल 4 पार्ट है. 4 में से फर्स्ट पार्ट है नेचुरल वर्ल्ड. नेचुरल वर्ल्ड में से क्या आएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. इसमें क्या है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपको एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 दोनों का जो एनवायरमेंट स्टडी का जो बुक है उस बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे. तो उसमें किस तरह से डिवीजन हुआ है? तो फर्स्ट पार्ट है नेचुरल वर्ल्ड. अब नेचुरल वर्ल्ड में क्या क्या आएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो सब अलग अलग प्रकार के वो. देन रिवर्स एंड माउंटेन्स, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें 2 टाइप एनिमल्स, लैंड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स.
then natural disasters, earthquake or etc etc, then types of houses and shelters, then water cycle, then environment and surrounding। ये सब फर्स्ट पार्ट में है, जो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, उसमें ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इज नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, अवर 5 सुपर सेंस ऑर्गन्स के बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में एंड सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या। देखो इसमें बहुत डिटेल में है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि फिगर जितना इजी था अब इतना इजी रहा नहीं है। अब क्या होगा, फिगर की जगह पे जो क्वेश्चन एनवायरनमेंट के डाले हैं वो थोड़ा पेपर हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये सब लिखा है। अब इसमें 4 एंड 5th स्टैंडर्ड के लेवल का ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेपर सेटर ऐसा होता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इससे निकाल सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, third part is science in daily life। okay, why we are using science in daily life or what we are doing। so सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेशन, हाउ टू प्रिजर्व फूड, जो आप आचार वो सबका आता है उसमें, जो उस तरह से सब क्वेश्चन। वाटर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हाउ टू कंजर्व वाटर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यूजेस ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ। ये सब है थर्ड पार्ट के उसके चैप्टर से। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, दिस इज लास्ट फॉर पार्ट फॉर एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट में लास्ट पार्ट क्या है, सोशल सराउंडिंग एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बहुत सारे चैप्टर है। स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया, सब स्टेट और उसके कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा। देन सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल्स, ओके, डिफरेंट लैंडस्केप डिफरेंट है, जैसे प्लेट्यू है, रिवर्स है, प्लेन्स है, वो सब। फेस्टिवल जितने भी है इंडिया में, सीजन्स कितने हैं, फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट और सब फॉरेस्ट में, देन क्रॉप्स कितने कहाँ कहाँ होते हैं, क्लोथ्स एंड फाइबर्स, ये सब आपको इंक्लूड किया है सोशल सराउंडिंग एंड जनरल अवेयरनेस। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल स्टडी का टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट, तो ये पहले था आपका इन्वायरमेंट का। अभी एरिथमेटिक मीन्स मैथ्स में क्या आएगा, मैथ्स के 25 मार्क्स और 20 क्वेश्चन हैं। इसमें जो चैप्टर भी इंक्लूड किए हैं वो लास्ट ईयर थे, वही चैप्टर है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई में अंदर से जो मटेरियल था चैप्टर का, कई टॉपिक वो निकाल दिए, लेकिन चैप्टर के नाम तो इस तरह से ही रहने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, सेकंड है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, देन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, उसमें कन्वर्जन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। अब इसके लिए सबके मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं सब चैप्टर के, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑन माय दिस चैनल, सो यू कैन गेट द प्रैक्टिस एंड द simple solution of the questions। Sixth is simplification of numbers, numerical expressions, profit and loss, बेसिक विदाउट परसेंटेज कैलकुलेशन इसमें दिया है, लेकिन कभी कभी इसने ये लिखा है विदाउट परसेंटेज, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज की आते हैं। उसके लिए भी वीडियो है आप मेरे चैनल पे। पैरामीटर एंड एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस, बार डायग्राम, लाइन चार्ट, वो जितने भी जो डेटा एनालिसिस के जो पार्ट है उस सब का आपको इसमें यूज होने वाला है मैथ्स के अंदर। कभी कभी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके सबके वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप वो वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस है। और लास्ट पार्ट जो है आपका लैंग्वेज का, लैंग्वेज पार्ट में कोई पर्टिकुलर सिलेबस होता नहीं है, इसमें सब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, सब के वो ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन आंसर चूज करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसमें ग्रामर के पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वो आपकी जितनी प्रैक्टिस है, आपका जितना नॉलेज है लैंग्वेज पे डिपेंड है। आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं एग्जाम के लिए उस लैंग्वेज में पैसेज आएंगे। अगर आपके इंग्लिश मीडियम ने इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो इंग्लिश में पैसेज आएंगे, आपको गुजराती में किया है तो गुजराती में आएगा, अदर हिंदी में किया है तो हिंदी में आएगा। तो वो सब बेस है आपके रीजनल लैंग्वेज पे। तो पूरा इस तरह से पेपर पैटर्न है। तो सब में जो लैंग्वेज आप चूज करते हैं उस लैंग्वेज में पूरा पेपर आने वाला है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सिलेबस का वीडियो है, आपको पूरे स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग आपको सब वीडियो आपके मेरे चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।